Hello students, welcome to online classes of Maharshi Public School. I am Mrs. Veena Deshmukh, your assistant teacher. In this video, we will see the 6th lesson of Civics, Rural Administration. So, you should take your assistant textbook and open your page number 236, okay? And keep it in front of you while watching this video. There are some new words and their meanings. And we should understand the meanings of these words here, okay? First, which is the first word is here? Administration. What is mean by administration? To organize and run a business or system. कोई भी system, कोई भी business हो, वो organize करना and उसे चलाना, that is called the administration, means प्रशासन in Hindi. Okay. Then next word is here commotion. What is mean by commotion? A state of confused and noisy disturbances, means हंगामा इन हिंदी. ओके, कॉमोशन मीन्स कुछ डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, नॉइसी डिस्टर्बेंसेस इन स्टेट. ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉमोशन. देन डिस्प्यूट. नेक्स्ट वर्ड इज हियर डिस्प्यूट. अ कंट्रोवर्सी, डिस्टर्बेंसेस ऑफ ओपिनियंस. डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा. ओके, इन हिंदी. Encroached means to advance gradually beyond expected legal limits, means किसी की लैंड पे कब्जा करना, दैट इज कॉल्ड द एनक्रोच्ड. ओके, अति गमन. देन प्रिटेक्स्ट. लास्ट वर्ड इज हियर प्रिटेक्स्ट. प्रिटेक्स्ट मीन्स a false reason used to justify an action. बहाना. pretext means बहाना करना. okay, then come to the lesson. There are more than 6 lakh villages in India, and you know students how many villages are here in our India? There are more than 6 lakh villages. okay, अपने इंडिया में कितने villages है? 6 lakh से ऊपर. Imagine the huge responsibility and the great task of taking care of their needs of drinking water, irrigation of fields, electricity, roads, etc. And आप यहाँ पे एक इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे रहेगी इतने सारे विलेजेस होने की वजह से. ओके, एंड दैट इज़ अ ग्रेट टास्क. टास्क मीन्स वर्क, फंक्शन, बहुत ही बड़ा वर्क है ये. विच वर्क इज़ हियर? टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स. जो भी विलेजेस है इनकी जो भी नीड्स है ये पूरी करना. ओके, दैट इज़ अ ह्यूज task, great task. okay, which are these needs here? Basic needs: drinking water, irrigation of fields, and electricity, and roads also. okay, for the sake of administrative convenience, each state has been further subdivided into smaller parts such as the district, tehsil, and paraganas. And do you know students how many states are here in our India? There are 28 states and 9 union territories. okay, and these states further divided into district, tehsil, and paraganas. okay, there is a subdivision. And why there is a subdivision of these states? Because for administrative convenience, because for proper running the administration. okay, running the government. okay, special officers manage the affairs of these units, and there are special officers appointed here for the managing the affairs of these units. ये जो units है इसके जो भी affairs है ये manage करने के लिए यहाँ पे कुछ officers, special officers रहते हैं appoint किए हुए. okay, there are approximately 630 districts in our India. And how many districts are here? 630. and students आपको ये फिक्स माइंड में रखने हैं. हाउ मेनी स्टेट्स आर हियर इन आवर इंडिया? देयर आर 28 states, 9 union territories, and how many districts are here? 630. okay, in our India.
These administrative divisions have developed depending upon the requirement of a particular region. ओके जो भी पर्टिकुलर रीजन होगा वहाँ के रिक्वायरमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन डेवलप्ड होगा. ओके देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर स्ट्रक्चर of rural administration. How is the structure of this administration? Rural means villages and urban means cities. Got it? The district or zilla is the most important unit of rural administration. The district collector, DC, or district magistrate, DM, is the head of the district and manages the administrative affairs of the state through various officials like superintendent of police, chief engineer, etc. The district collector or district magistrate is the head of the district और ये head है district के. And what is the duties is here manages the administrative affairs of the state. Okay, that is the responsibility of district collector. थ्रू वेरियस ऑफिसर्स और यहाँ पे और भी कुछ ऑफिसर्स है लाइक अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ इंजीनियर. ओके द डीएम इज अ मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और ये जो डीएम है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर रहते हैं. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन चार्ज ऑफ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज़ क्या है ये देखनी है हमें. ओके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फर्स्ट overseeing the working of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इसका वर्क ऑब्जर्व करना. ओके सुपरवाइज करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. देन प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग सिविक्स एमिनिटीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमिनिटीज? एमिनिटीज मीन्स सुख सुविधा. ओके इन हिंदी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन. और जो वाटर हमारे यहाँ पे जो टैप में वाटर आता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की. ओके इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके एंड एजुकेशन ऑल्सो, जो गवर्नमेंट की स्कूल्स रहती है. Got it? Then next duty is here dealing with the law and order problems, maintain the law and order. Okay, then next responsibility collecting revenue. What is the meaning of the revenue? Revenue means tax. Okay, as well as keeping land records. टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, रखना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, कैसे मेंटेन किया जाता है. ओके Maintaining law and order is one of the key responsibilities of the district magistrate and superintendent of police. Assist him in this task. And whose is this responsibility? Maintaining law and order, that is a district magistrate, and उनकी help करते हैं superintendent of police. Assist means help करना, that word. Okay, असिस्ट मीन्स हेल्प. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हेल्प कौन कर रहे हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. कौन से वर्क में? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. ओके द मेन टास्क, यू नो टास्क मीन्स काम, वर्क. द मेन टास्क ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द मेंटेन पीस. बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क फंक्शन कौन सा रहता है? टास्क कौन सा रहता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का? मेंटेन पीस. पीस मीन शांति. ओके शांति बनाए रखना. एंड इंश्योर दैट एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी लोग फॉलो
कर रहे कि नहीं कर रहे ये वॉच करना, ओके, एंश्योर करना. The district are subdivided into tehsil, and these district further divided into tehsil. Okay, the deputy superintendent of police maintains law and order in the tehsil or talukas. जो भी तालुकाज है, जो भी तहसील्स है, यहाँ पे किसकी ड्यूटी रहेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ओके, ही मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन तहसील एंड और तालुका. इसे तहसील भी कहा जाएगा, तालुका भी कहा जाएगा. ओके, हाउ इज द डिवीजन? डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील एंड तालुका. ओके, जो डिस्ट्रिक्ट है ये फिर से डिवाइड किया हुआ है तहसील एंड तालुकाज में. These सब डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पुलिस सर्कल्स, एंड ये जो सब डिवीजन है तहसील एंड और तालुकाज, ये फिर से डिवाइड किया हुआ है इनटू पुलिस सर्कल्स. Normally around 10 or more police stations or thanas managed by an inspector or station house officers fall under a circle, and normally 10 और मोर 10 के ऊपर पुलिस स्टेशंस थानाज रहते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर मैनेज करता है ये जो सभी थानाज. ओके, 10 के ऊपर, एंड ये एक सर्कल में आते हैं. ओके, हाउ मेनी police stations are in under fall under a circle? 10 or more police stations. Okay, 10 रहेंगे या 10 के ऊपर. Okay, other officials who assist him in maintaining the law and order are sub inspector, assistant sub inspector, head constable and the constable. एंड ये जो इंस्पेक्टर है इन्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पे और भी कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, विच आर दीज सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल. और ये इंस्पेक्टर को हेल्प करते हैं इन विच फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 237. At the village level, चौकीदार help in the averting crimes. Averting means टालना, okay, prevent, and arresting crooks. Crooks means अपराधी. and जो विलेज है, विलेजेस है, यहाँ पे चौकीदार हेल्प करेगा किसके लिए? जो भी क्राइम्स होगा वो अवॉइड करने के लिए, ओके, प्रिवेंट करने के लिए. देन अरेस्टिंग द क्रूक्स, अगर क्राइम होता है तो जो भी क्रूक है, अपराधी है, उसे अरेस्ट करने के लिए. ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड मैटर रिलेटिंग टू थेफ्ट, फाइट, injury, accident, etc. and investigate the matter accordingly. And next duty of police station is here record मेंटेन करना. ओके, रिकॉर्ड रखना, जो भी मैटर है, अगर चोरी होती है तो उसका रिकॉर्ड बनाना और वो रखना, फाइट होती है, इंजरी होती है या एक्सीडेंट होता है, तो ये सभी जो भी इंसिडेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना और वो प्रॉपरली रखना. एंड जो भी इंसिडेंट होते हैं या क्राइम होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना. ओके, दैट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस स्टेशन. व्हाट इट? Every district also has a jail with a jailer as its head and the deputy jailer to support him her. And हर डिस्ट्रिक्ट को एक जेल रहता है एंड यहाँ पे जेलर भी रहते हैं. दैट ही इज द हेड, ये हेड रहते हैं जेल के. एंड डेप्यूटी जेलर ऑल्सो, और यहाँ पे डेप्यूटी जेलर भी रहेंगे और ये सपोर्ट करेंगे जेलर को. ओके, there are separate prisons for men and women, and during their jail terms they are taught various crafts such as weaving, carpentry, basket making, etc.
so that in the future they can utilize these skills to earn a living. And there are separate prisons means जेल, ओके, तुरुंग बोलेंगे हम इसे। तो यहाँ पे सेपरेट प्रिजन्स रहते हैं फॉर मेन एंड वीमेन, और जो जेल टर्म रहता है उनका, जो जेल में रहने का पीरियड रहता है, यहाँ पे इन्हें अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं, क्राफ्ट सिखाए, अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, जैसे वीविंग, ओके, बुनना, कारपेंट्री, बास्केट मेकिंग भी यहाँ पे सिखाया जाता है। फॉर व्हाट, क्यों ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है यहाँ पे? इन द फ्यूचर दे कैन यूटिलाइज दिस स्किल्स टू अर्न अ लिविंग, यानी फ्यूचर में अगर ये जेल से बाहर जाते हैं तो अर्निंग के लिए उनके पास ये स्किल रहे और वो कुछ अर्न कर पाए, ओके, कमा सके। अर्न मीन्स कमाना। Then there are MCQs. We have to solve these MCQs here. First, how many villages are there in India? There are 3 options. A, more than 100 crore. B, more than 6 lakh. Then C, more than 6,000. What is the option? What is the answer here? B option is answer here. How many villages are here in our India? More than 6 lakh. फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने पढ़ा, ओके। देन सेकेंड, what is the order or sequence in which the state is further subdivided? There are again 3 options. A, paraganas, tehsils and districts. Then B, district, tehsils and paraganas. Then C, district, villages and towns, okay. Which is the correct answer? B option again answer, okay. District, tehsil and paraganas, okay. Now next topic, role of police. We have to study about the role of police. पुलिस का नाम लेते ही हम घबरा जाते हैं, स्पेशली बच्चे, ओके। तो व्हाट इज द रोल, ऐसे ही पकड़ के नहीं लेके जाते पुलिस हमें, ओके। तो कुछ वहाँ पे क्राइम होता है या कुछ रॉन्ग वर्क होता है, तो उसकी वजह से पुलिस पकड़ के लेके जाती है, ओके। डोंट फियर टू पुलिस। नाउ, Karnapal and Sukpal are both farmers, and there are 2 main characters, which are these Karnapal and Sukpal, okay, and they are both farmers. ये दोनों farmers है। They have adjoining lands separated only by बंद, ओके। ये सेपरेट की गई है सिर्फ एक बंद से, अ स्मॉल माउंट, ओके। Karnapal is a rich and powerful farmer with several acres of land, and there is this Karnapal, he is very rich and powerful person, okay, a powerful farmer, and he has several acres of land, okay, बहुत सारी land है इसके पास। And while Sukpal only has a small agricultural field, and this Sukpal is a small farmer, okay. कर्नपाल बहुत ही रिच पावरफुल फार्मर है, तो सुखपाल एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास बहुत ही छोटी सी लैंड है, ओके। वन फाइन मॉर्निंग सुखपाल डिस्कवर्स दैट कर्नपाल हैड रिमूव्ड द बंद एंड एनक्रोच्ड अपॉन हिज लैंड। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो सुखपाल देखता है कि कर्नपाल क्या कर रहा है, जो बंद यहाँ पे बनाया हुआ है दोनों लैंड के बीच में, दोनों फार्म्स के बीच में, ये इसने रिमूव किया, एंड जो सुखपाल की लैंड है इसे ये हड़पना चाहता है। एनक्रोच मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनक्रोच? टू एडवांस ग्रेजुअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लीगल लिमिट, ओके। जो भी लिमिट है उसके आगे जाना लैंड में, ओके, एंड दूसरे की लैंड हड़पना, दैट इज कॉल्ड द एनक्रोच, अतिक्रमण बोलेंगे हम इसे, ओके। Sukpal confront Karnapal, and an intense argument ensues.
सुखपाल कन्फ्रंट्स कर्णपाल, और ये जो सुखपाल है ये कर्णपाल का सामना करता है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चलती है, बहस चलती है। इवेंचुअली द आर्ग्यूमेंट्स टर्न्स वायलेंट, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे चल रही है इस ये वायलेंट में टर्न हो जाती है, यानी यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एंड कर्णपाल आस्क हिज हेल्पर्स टू बैश अप सुखपाल, एंड ऑन हियरिंग द कोमोशन मीन्स हंगामा, ये सब हंगामा सुन के नेबर्स रश टू हेल्प सुखपाल, और नेबर्स दौड़ के आते हैं सुखपाल की हेल्प करने के लिए, एंड टेक हिम अवे, और उसे बाहर निकालते हैं। आफ्टर मच डिबेट्स सुखपाल एंड हिज वेल विशर्स डिसाइड दैट सिंस कर्णपाल इज रिच एंड इन्फ्लुएंशियल इट इज़ बेटर टू रिपोर्ट द मैटर्स टू द पुलिस। और बहुत सारे डिबेट होने के बाद, डिबेट मीन्स बहस, ओके, सुखपाल एंड उसके जो भी वेल विशर्स रहते हैं, उनके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो कर्णपाल है ये रिच है एंड पावरफुल है, तो अगर हम इसके साथ कुछ झगड़ा करते हैं तो ये इससे बेटर है कि हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, पुलिस से रिपोर्ट करें। दे ऑल डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन इन देयर एरिया, और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करें, किसके खिलाफ? कर्णपाल के खिलाफ। On reaching the area police station, they approach the station officer and narrate the incident. और जैसे ही ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो स्टेशन ऑफिसर को सब इंसिडेंट बता देते हैं। Initially, the officers is of the opinion that since it is a small land dispute, there is no need to involve the police. अब शुरुआत में ऑफिसर क्या कहते हैं कि ये छोटा सा झगड़ा है, लैंड का झगड़ा, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, ओके, तो यहाँ पे पुलिस का काम नहीं है। बट व्हेन सुखपाल्स नेबर्स ऑल्सो आर्ग्यू इन हिज फेवर एंड इंसिस्ट दैट अ केस शुड बी रजिस्टर्ड, द ऑफिसर एग्रीज। एंड शुरुआत में ये रिजेक्ट कर देते हैं ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, लेकिन सभी जो लेबर्स है सुखपाल के, ये इसके फेवर में होने की वजह से, सुखपाल के फेवर में होने की वजह से उन पे प्रेशर लाते हैं, और फिर ऑफिसर एग्री हो जाते हैं केस दर्ज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, ओके। ही आस्क सुखपाल एंड हिज नेबर्स टू फाइल एन FIR, और वो ये जो ऑफिसर है ये सुखपाल एंड उनके नेबर्स को FIR फाइल करने के लिए कहते हैं। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके, एंड मेंशन दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, और वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये कांस्टेबल को भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी मैटर है उसका। ही ऑल्सो सेज दैट सुखपाल वुड नीड लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स to prove the total area of land in his possession, and ये जो ऑफिसर है ये सुखपाल को कहते हैं कि जो उनकी लैंड है उसका रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और उससे प्रूव होगा कि टोटल एरिया, लैंड की एरिया ये कितनी है सुखपाल की, तो उससे ही डिसाइड होगा कि किसकी कितनी लैंड है, ओके। दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग हिज केस अगेंस्ट कर्णपाल, और इसकी वजह से इसके केस में हेल्प मिलेगी कर्णपाल के अगेंस्ट जो केस करने जा रहा था सुखपाल इसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। Keeping land records and collection of revenue is one of the most important jobs of the district administration office. And जो land record रहता है उसको maintain करना, उसे proper रखना, and जो revenue रहता है, revenue means tax, तो collection of revenue, okay, revenue collect करना, that is the most important job of district administration office, okay, district administration office का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, ओके। दीज लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, और ये जो भी लैंड रिकॉर्ड है
ये यहाँ से बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सच एज राइटफुल ऑनर्स नेम, यानी जो ऑनर है उनका करेक्ट नेम, ओके, अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड, एंड कितनी कल्टिवेबल लैंड है एंड कितनी नॉन कल्टिवेबल लैंड है। कल्टिवेबल मीन्स कौन से कितने लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, ओके। एंड नॉन कल्टिवेबल मीन्स जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉन कल्टिवेबल लैंड, ओके। इसका हमें रिकॉर्ड मिलता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर सोन, और कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ओके। तो इसका भी रिकॉर्ड हमें यहाँ से मिलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से, ओके, विच हेल्प इन रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। और ये जो भी रिकॉर्ड है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे हेल्प की जाती है ये रिकॉर्ड की वजह से, जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, झगड़े हैं, ये सॉल्व करने के लिए, ओके। These legal documents also help the farmers in obtaining loan, purchasing new land and also in the division of property। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है इसकी फार्मर्स को हेल्प होती है जहाँ लोन लिया जाता है, ओके, एंड न्यू लैंड परचेज की जाती है, एंड इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड हेल्प करता है, ये डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं, ओके। द रेवेन्यू ऑफिसर who assist the district magistrate in collection of revenue is called the tehsildar, and there is one officer who is he revenue officer, okay। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, असिस्ट मीन्स हेल्प, ओके, इन विच वर्क कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, एंड इन्हें क्या कहा जाता है, तहसीलदार, ओके। द तहसीलदार्स ऑफिस नॉट ओनली डील विद लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड डिस्प्यूट बट ऑल्सो इश्यूज सर्टिफिकेट्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एंड ये जो तहसीलदार है, तहसीलदार का ऑफिस है, ये यहाँ पे सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं किए जाते और लैंड डिस्प्यूट ही सॉल्व नहीं होते, तो यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट्स जैसे सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जाते हैं, ओके। एट द विलेज लेवल कनुंगो लेखापाल और द पटवारी डील्स विद दिस टास्क, एंड जो विलेज लेवल है यहाँ पे ये ऑफिसर्स वर्क करते हैं, ओके। द कनुंगो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, और ये जो कनुंगो है ये पटवारी जो वर्क करेंगे उसका सुपरविजन करते हैं, एंड ऑल्सो एंश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड्स, और जो रेवेन्यू है और लैंड रिकॉर्ड है इसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी ये देखते हैं, ओके। नाउ पटवारी, द पटवारी ऑल्सो नोन एज अ लेखपाल और विलेज ऑफिसर, और ये जो पटवारी है इन्हें लेखपाल भी कहा जाता है एंड विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है, ओके। is responsible for maintaining and the updating land records of villages, और what is the duty of these पटवारी, कि जो लैंड रिकॉर्ड है विलेजेस का ये मेंटेन करना, अपडेट करना, ओके, जो उनके अंडर में आता है। एंड विच आर द फंक्शंस ऑफ पटवारी, देयर आर some functions of patwaris, okay, given here. First, maintaining khasra, a register of harvest inspections, okay. Then second, updating records of land ownership, जो land है उसका record update करना. Then on next page, page number 238, organizing collection of land revenue from farmers. Then next work responsibility, updating the government
अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, और उनके एरिया में जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं ये जो भी रिकॉर्ड है ये अपडेट करना. ओके, देन नेक्स्ट, updating the administration about any calamity or disaster that may happen in the area. Now students, there is one video related to this topic, which topic we have learned here, rural administration. Okay, I have searched this video, and you have to watch this video, and we will learn through this video about the rural administration. Okay, so watch it and enjoy. Okay. In this module, you will learn about rural administration. We all know that our country is made up of many states. All these states consist of many districts, which are divided into tehsils or talukas. Every tehsil is a collection of small towns and villages. Most of the land in villages is used for farming, and the government is responsible for maintaining proper records of these lands. The task of maintaining the land records and collecting revenue from the farmers is done by the village patwari. A patwari is also known as Lekhpal, Kanungo, and village officer in different regions of India. The patwari maintains the land records by measuring the plots. Usually a khasra record is maintained which gives information regarding the owners of different plots of land. The khasra number is a plot number given to a specific piece of land which is owned by a villager or village community. This information is very crucial to farmers who need to produce the land record at the time of land division or during buying or selling of land. The land record work is monitored by the Revenue Department of the Government of India. The patwari reports to the revenue officer at the district level, who is also known as the tehsildar. Tehsildars from various districts report to the district collector. The tehsildars supervise the work of the patwaris and ensure that the land records are properly maintained and revenue is collected. The tehsildar also provides a copy of the land records to farmers. Until some years ago, only men used to own agricultural land. Women in a village worked in the fields, but they did not own property. However, in 2005, the Hindu Succession Act was amended. Thanks to this, whenever there is a land division now, women are also given an equal share in the agricultural land along with the male members of a family. If land-related disputes arise, the police get involved. Actually, every police station is given an area of control so the villagers can file their report in the specific police station under which their village falls. We have now reached the end of this module on rural administration. In this module, we learnt that it is important for the government to maintain proper land records. The land record work comes under the Revenue Department of the Government of India. The patwari maintains land records and collects land revenue in a village. The tehsildar is a land revenue officer at the district level. He supervises the work of a patwari. And that, as per the Hindu Succession Amendment Act, women in India can get a share in the family's agricultural land. Now students, today's topic is completed here. Okay, in next video we will see the next topic of this lesson.
okay, which is the next topic here, civics, amenities and development. So we will see this topic in next video, and I will send question and answer. You have to write the question and answers in your copy and learn the question and answers of this lesson for unit test. Okay, in the end of this month there is post examination, so you have to learn the question and answers of lessons. Those lessons are in syllabus of our unit test, second unit test. Okay, जो भी यूनिट टेस्ट में लेसन्स है, यूनिट टेस्ट के सिलेबस में वो लेसन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको लर्न करने हैं. ओके, आई थिंक सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिले हैं, सिर्फ यही लेसन आपका बाकी है. आई विल सेंड इट, ओके, आफ्टर दिस वीडियो. So you should write these question and answers in good handwriting. Okay, neat and clean work होना चाहिए सभी का. Now have a good day.